Hello and assalamu alaikum to all the people watching the video. I'm Aman Khan from Evolve Consultants Private Limited, and with me I have Mr. Rehan Tariq, who is the CEO of HR Business Solutions. Hello Rehan, how are you? Hello, Aman. Hi everyone. I'm good. How's the quarantine life? How are you coping up with the circumstances going around? I think now everybody is used to. So working from home, that's what these days we are all doing. Or Exactly. there are some organizations being professional employers, service providers for the HR part. Many organizations have shut their businesses. They've asked their employees to work from home. So for their back-end HR operations, we are working for them. And though they are off, but we are working for them from our home. And so it's just that the offices are closed, but the work is on. So tell me something about HRBS, what you guys do and how you're serving in this circumstances of COVID-19 going on. Okay, so our company, HR Business Solutions, basically, it's been 1 year since we are, we started this organization, and we have been working with many international clients recently, and the major chunk is with the Chinese firms. The Mhm. CPEC part of the businesses, the organizations which are coming from China to Pakistan. So we are providing them with the feasibility studies for the Pakistani market, for HR areas. And then, the most important aspect, what we do is recruitment for them, the headhunting, Mhm. then providing customized cross-cultural training, soft areas. Then there are, end-to-end HR areas, HR outsourcing we do, including the payroll, even for that matter, the salary service. So all those market intelligence services we provide to them. Not only the Chinese firms, but we are also working with local and some leading MNCs as well. Very nice. And since you're working very closely with the corporate world and different companies and industries, so जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं, everything is upside down. So आपको क्या लगता है कि in the coming years, after all this, how the market will change, how the dynamics will change? If you see, even at the current scenario, many organizations have started laying off employees. So Exactly. business नहीं होगा तो क्योंकि HR मैं अगर इसको if I see it through the lens of HR, so what I see is there needs to be a very important alignment between businesses and your headcount. So if the organizations, they're also fair when they plan in their mindset that if they're not getting businesses, so they also have to optimize the cost of human capital. So as a result, they are laying off. So but considering maybe I think at least couple of months until we get over to this pandemic period, uh, the business would start to rise again, और काफी अच्छा. कंपनीज जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करेंगी एग्रेसिवली, और बट स्टिल जो उस टाइम तक हम लोग यूज टू हो चुके होंगे, जैसे अभी हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, Yes, the और transition will be very hard. एग्जैक्टली सो उस टाइम तक ये जो रिमोट और टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है ये ज्यादा बढ़ चुका होगा, और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा रिलायंस शुरू हो जाएगा, और ये आप देखेंगे कि इस पीरियड के बाद काफी रिसोर्सेज, काफी आपका जो टैलेंट है उसको मल्टीपल टास्क्स दिए जाएंगे। और Exactly, because अब हम लोगों को exactly पता चल चुका है कि this is the thing that we could have done, that we are doing right now, जो सब कुछ हम पहले ऑफिसेस में बैठ के करते थे. एग्जैक्टली वही काम अब हम घर से कर रहे हैं, और आगे जाके हम देखेंगे कि हमें अगर हम इसको ब्लेंड कर दें टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी का एडवांस जो जैसे आजकल हम रिमोटली यूज कर रहे हैं, सो मे बी आपका जो हेड काउंट है इसको आपको कम जरूरत होगी कंपनीज को,
और इससे ये होगा कि जो अपॉर्चुनिटीज कैरियर अपॉर्चुनिटीज होंगी, इवन जो ग्रेजुएट्स अभी पास आउट होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आएंगी, नॉट ओनली दोज that was बट one जो major मार्केट में है उनके लिए भी। Exactly. That was one major concern of mine कि अभी since अभी सबकी studies भी रुकी हुई हैं, all the 2020 classes of 2020 they're just stuck. अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि when they are graduating, but considering and predicting कि they will be graduating in an environment जिसमें job market will be down, because I don't think so कि एकदम से recruitment इतनी start होंगी क्योंकि पहले ही organization में layoffs हो रहे हैं. So what do you think that will be the future for the class of 2020 graduating? इट वुड बी टफ, वी हैव टू बी रियलिस्टिक, काफी टफ होगा। अगर आप इवन अभी आप देख लें, ये पीरियड जब नहीं आया था ये कोरोना का, तो ऑलरेडी जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे उनके लिए काफी टफ था। सो अब तो मजीद इट वुड बी टफ। और आप देखेंगे कि अब एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। अब इंस्टेड ऑफ मूविंग इनटू द जॉब मार्केट, ये प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर में you'll see entrepreneurs coming up. So Definitely. I think that is the need of the hour। और उसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट, अभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करेगी, और जो हमारा एकेडेमिया है इसका एक जो आप इसको कह लें कि काम करने का जो रिजल्ट ओरिएंटेड अभी जॉब मार्केट की तरफ, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ ज्यादा अलाइंड है, तो ये चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो स्टूडेंट्स अपना बिजनेस स्टार्ट से खुद शुरू कर सकें, सेल्फ रिलायंस उसके ऊपर जाना पड़ेगा। So what would you suggest to the fresh grads? Since honestly speaking, entrepreneurship is also not that easy if you're starting from the scratch. So what you suggest to the fresh grads? हाँ, अभी I'll be very honest, इनिशियली अभी हम पास में भी देखते रहे हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट जब निकलते हैं तो इवन ग्रेजुएट होने के बाद दे हैव टू स्टार्ट इंटर्नशिप्स, और इंटर्नशिप्स के बाद भी दे आर अनसर्टेन वेदर दे आर गोइंग टू गेट द जॉब्स और नॉट। सो अब तो वो सिचुएशन मजीद एग्रेवेट कर जाएगी। तो उसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे उनको अपनी बिजनेस स्टडीज, बिजनेस फिजिबिलिटीज बनाएं। उस टाइम के ऊपर वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हर किसी का शौक होता है कि एमएनसी को ले लिया और उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट कर लिया, थीसिस बना लिया, प्रेजेंटेशन दी एंड वी आर डन। सो वो जो 4-5 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उसमें वो फैकल्टी को भी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ जाएं, अपने आइडियाज, जो यूनिक आइडियाज हैं वो लेकर आए, उनको रिफाइन किया जाए, और ये 4 से 5 जो मंथ का टाइम है उस अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं कि किस तरह खुद से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें सेल्फ रिलायंस का एस्पेक्ट आ जाएगा। उनको कॉर्पोरेट सेक्टर या किसी और के ऊपर Uncertainty देखना कम नहीं हो पड़ेगा। जाएगी. एग्जैक्टली। सो दिस इज फॉर मी द शॉर्ट टर्म, यही एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आई थिंक वी शुड ऑल मूव फॉरवर्ड। एंड प्लस आई थिंक कि अगर ये सेल्फ रिलायंस का और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ एक जो शिफ्ट है, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगा और ज्यादा इजी होगा स्टूडेंट्स के लिए इफ द गवर्नमेंट एंड द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प द स्टूडेंट्स. So what do you think that they should change in their system so that they can look forward and beyond the concept of joining any MNC for after graduating? अच्छा, इसमें ये है कि हम इसको ना ब्रिज भी कर सकते हैं, और विच वुड बी अ वेरी गुड आइडिया, जिसमें आप एमएनसी कॉर्पोरेट सेक्टर को अलाइन कर दें एकेडेमिया के साथ, जिसमें ये जो प्रोजेक्ट्स बच्चे कर रहे होंगे उनको प्रैक्टिकल इंसाइट देने के लिए उससे रिलेटेड, लाइक अगर वो एमएनसी है या कोई भी कंपनी है, वहां से आप प्रोफेशनल्स को असाइन करें कि वो उन प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करें, ताकि वो जो मार्केट की प्रैक्टिकल इंसाइट है वो वहां से आती रहे, और साथ एकेडेमिया में जो उनके प्रोफेसर मौजूद हैं वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, तो दोनों चीजें जब ब्लेंड होंगी तो एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो निकल के सामने आएगा। Definitely, and I hope ऐसा हो. And coming back to the HR part, since सब कुछ change हो रहा है and you talked about the layoffs, so what do you think that the role HR is playing in the organizations right now?
जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो इसमें देखिए एचआर का काम होता है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करना, नंबर वन। सो इसमें बिजनेस स्ट्रेटेजी जो कंपनी की है उसमें अगर मैंने 1 बिलियन का मेरे साल का रेवेन्यू का टारगेट है और अब आप देखेंगे बीच में सब कुछ शट हो गया, तो मैं अगर अपनी वर्कफोर्स को उस हिसाब से अलाइन नहीं करता, बेंचमार्क नहीं करता, मेरा हेडकाउंट का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है, तो मैं तो लॉस में चला गया। So Definitely. initially, every business have to think about themselves first. उसके बाद the next aspect is you look after the organization, employees, culture और वो सारी चीजें। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो सफर हो गया तो आपको ले ऑफ जरूरी हैं, करने पड़ते हैं। बट इसमें एक और एस्पेक्ट भी है जो कई कंपनीज कर रही हैं, वो दे आर नॉट लेइंग ऑफ बट दे आर गिविंग आइदर partial salary or you know engaging them on a rotation basis। तो उसमें इस तरह से भी चल रहा है। सो इसमें एक और एंगल आता है कि अगर आप इवन फॉर दैट मैटर अगर आप ले ऑफ नहीं भी करते, सो एक Mm-hmm. एम्प्लॉय को अगर आप अनपेड के ऊपर भी रखें तो एक मेंटली इतना बर्डन नहीं आता उस एम्प्लॉय के ऊपर कि ही हैज बीन Exactly. लेड ऑफ एंड नाउ ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो ये दो चीजें हैं कि आप रोटेशन बेसिस के ऊपर भी जा सकते हैं और आप एम्प्लॉयज को परमानेंटली डिसंगेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इतना मेंटल वो टॉर्चर चल रहा है सब जगह पे, तो आई थिंक इतना तो किया जा सकता है। Mm-hmm. So, since आपका experience है काफी in the policy making to implementing them, so right now, what will you suggest to all the businesses from small businesses to big businesses कि उन्हें किस तरह policies को recreate करना चाहिए या amend करना चाहिए to keep the morals high of the team? अच्छा, इसमें ना दिस इज द आइडियल टाइम फॉर ऑल स्मॉल कंपनीज, एसएमईज की जब हम बात करते हैं कि अभी बिजनेसेस उस तरह से रिगरसली नहीं चल रहे, तो जो उनकी बेंचमार्क जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, फील्ड से रिलेटेड एमएनसीज को उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को बेंचमार्क करें। अभी रिसेंटली वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट, उसमें टैलेंट मैपिंग से रिलेटेड था। सो व्हाट वी वर डूइंग इज we were asked by a client that they needed a certain resource of people और they need to identify वो लोग कहाँ पे मौजूद हैं। So इस टाइम में what some of the companies are doing is they are analyzing where are their potential employees जो आगे जाके वो हायर कर सकते हैं। So अभी ठीक है हायरिंग नहीं हो रही, बट एक competitor analysis होता है कि आप competition market में से resources, the best recruit always comes from the competition market, तो आप उनको आइडेंटिफाई करें। सो ये एक वो बहुत अच्छा टाइम है कि आप ऐसे सारे टैलेंट को आइडेंटिफाई करें। फिर दूसरी चीज आप आ जाएं इसमें, अपना यहाँ पे आता है आपका कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कितना आपका स्ट्रांग है, अच्छा है। इवन फॉर द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम, ये एक कम्युनिकेशन है, एक सेटिस्फेक्शन है कि एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दे आर बोथ एंगेज्ड इन दिस टाइम। सो एक ट्रस्ट का फैक्टर आ जाता है बहुत ज्यादा। सो इस वक्त ये सारा टाइम है दोबारा से थिंक करना, टैलेंट को अपने देखना, फिर आगे जाके आपने कौन कौन से ट्रेनिंग्स और उन एस्पेक्ट्स पे काम करना है, आपका अगला विजन क्या है, उसके लिए आपने तैयार किस तरह से करना है, ये री-स्ट्रेटेजाइज करने का सारा टाइम। Exactly, because I think when we are working from home, it's kind of a surprising thing, but more equal कि हम लोग definitely देख पा रहे हैं कि which are the employees that are working properly, because वो जो employer और employee gap था वो काफी bridge हो रहा है since we are apart. So that's a good thing. And coming to the training part, which you just said, कि which trainings they need further. So जो जितनी भी training in consulting and management companies हैं, what you suggest that in times जब हम कोई training organize नहीं कर सकते, all we have is online. So what trainings you suggest and what way forward you suggest? अच्छा, ट्रेनिंग्स जो है उसमें अब दो चीजें होती हैं, एक तो क्लासरूम ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें फिजिकल ट्रेनर और ट्रेनिंग्स का इंटरेक्शन होता है, और आजकल एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है ई लर्निंग का, जो ऑनलाइन आपकी बिल्कुल ट्रेनिंग्स वो चलती हैं। आजकल हम देख भी रहे हैं काफी
लोग जो हैं वो ऑनलाइन सेशंस डिलीवर कर रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली उतना नहीं होता जो आपका क्लासरूम ट्रेनिंग का होता है। Definitely, because I और don't get the point that e-learning is only e-learning if it's carried out properly. Otherwise, अगर आपने कुछ सीखना है, you can go and watch a video. You don't have to be this interactive if it's not proper. exactly, you just open YouTube and type any subject matter और you start doing it. तो उसमें फायदा भी कोई नहीं, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें, वो कॉस्ट, एक जो चीज होती है ना एंगेजमेंट का, एक ट्रेनिंग सेशन में कि किस तरह से आपने एंगेज रखा हुआ है पार्टिसिपेंट को और ट्रेनर के साथ, तो वो चीज तो खत्म हो जाती है, वो इट्स वेरी हार्ड, जो कि ऐसा नहीं हो सकता। सो आई डोंट रेट ई लर्निंग मच, बट ये है कि आगे जाके अब सारी चीजें चेंज हो जानी है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी एडवांसमेंट्स होनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी जो आपका हेड काउंट है किसी भी कंपनी का, वो आगे जाके आप देखेंगे कि वो उसकी रेशो कम होती जाएगी। सो आपने किस तरह से अपनी रिसोर्स की एफिशिएंसी बढ़ानी है कि आपने आगे जाके उसको एडिशनल टास्क भी देने हैं। तो ये सारी चीजें आप बिजनेस के साथ किस तरह से इनको रिलेट करते हैं, और ये सारा एक रीस्ट्रेटेजाइज करने की बात है कि इस टाइम में जबकि बिजनेस स्लो हुए हुए हैं, तो you can sit down and you can think about all that. Okay, so we were just talking about the fact that we all are getting used to of this work from home thing. So inshallah soon when things will be coming back to normal, we all will coming back to our normal lives. So it will be very hard to just come back into shape. So how you think that we can cope up with that or train our employees to do so? अभी आप देखें तो अभी तो वी आर सो टायर्ड ऑफ दिस कि सैटरडे संडे भी आता है तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या Exactly, हुआ। there's कोई हिसाब ही नहीं है। तो आई बिलीव जैसे ही ये टाइम पीरियड खत्म होता है तो सबसे पहले तो एवरीबॉडी वुड बी हैप्पी, और ये पहली दफा शायद होगा कि सब खुशी खुशी जो हैं वो ऑफिसेस जाने लगे। तो उसके बाद आई थिंक इट वुड बी इनिशियल टाइम पीरियड थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स भी हो चुके होंगे, तो थोड़ा सा शायद टफ हो, बट देन अगेन दैट इज वेयर वी ऑल बिलोंग टू, और वहां पे हमने जाना है, काम करना है, और लाइफ जो है उसी तरह से स्टार्ट होगी फिर। Okay. And since concluding the talk, anything you would like to say to all the people watching the video, how they can stay positive and just ramp their way through this time? इस टाइम पे आई आई ऑलवेज बिलीव, और विच आई एम ऑल्सो डूइंग, कि इस वक्त अपने ऊपर जो है वो आप इन्वेस्ट करें, बुक रीडिंग करें, और जो क्योंकि अभी आप क्वारंटाइन में अपना अलहदा से आइसोलेट होके बैठे हुए हैं, सो ज्यादा जो है वो उन चीजों के ऊपर फोकस अगर करें जो आगे जाके हम यू नो अभी इन्वेस्ट करें और आगे हमारे काम आ सकें। इसमें ठीक है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की बात कर सकते हैं, बुक रीडिंग की बात कर सकते हैं, फिर टेक्निकल नॉलेज जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो ऑब्वियसली, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो इंटर्नशिप्स नहीं कर सकते वो बिजनेस केस स्टडीज लाजमी पढ़ा करें। उससे ये होता है कि एक प्रैक्टिकल इनसाइट जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, और उनको उस आइडिया का, कॉन्सेप्ट का, वो उसमें सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसी तरह से जो हमारे टेक्निकल रिसोर्सेज हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में जो काम कर रहे हैं, फाइनेंस में, एचआर में, सो जो उनकी कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो उनके साथ केस स्टडीज शेयर करें। केस स्टडी शेयर करने से ये होगा कि रियल टाइम केसेस वो उनको पढ़ेंगे, और ये उससे बेहतर है ई लर्निंग से। आप E-learning, so इसको definitely. एग्जैक्टली यू कैन असाइन दिस एज अ टास्क Task. टू योर टीम, और उसके बाद देयर कैन बी, हाँ उसमें आप फिर ऑनलाइन एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका टेस्ट एक आप ले सकते हैं। सो यू कैन लिंक दिस विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। इससे ये होगा कि वो उस माइंडसेट में भी आ जाएंगे कि दे विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स, और एट द सेम टाइम दे विल बी मोटिवेटेड, क्योंकि उनकी
जो परफॉर्मेंस है वो भी साथ मॉनिटर हो रही होगी. So Definitely. and you can increase their skill set. Okay, thank you so much for your time, Rehan. And I hope the people watching the video took out something positive from this session. And we'll be doing more of them in future, inshallah. So, Allah Hafiz. Thank you for the time. Thank you Allah so much. Hafiz.